Yes. Okay. So basically, Yes, ma'am. this is going to be a quick session. I am just going to address the issues that some of you are facing with the location not getting, location allotment. So basically, I just want to understand, like we had requested every one of you to fill out the forms. So mostly students did not fill out the form, but yes, we have received responses from at least half of the students. And as per the responses that we have received, almost 90% of students have been allotted the center. So it's just the 10% of the section who basically they have not received their update related to their location. Basically, they have yet not been allotted the location. So first of all, I would like to highlight basically, I hope the screen is visible to all. So first of all, I would like to highlight all the details about the location because still some of the students are confused basically कि exactly center है कहाँ पे. तो एक बार ये देख लेते हैं कि सेंटर आपका कहाँ रहेगा. We will be forwarding this link as well to everyone, so you can check out on their website as well. So see, this is for all the centers outside India. So see, India का जो सेंटर है, Ahmedabad students have their center in Sri Swaminarayan Institute of Technology. Bangalore students have Vision Tech Park Private Limited. चंडीगढ़ में ज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी. जयपुर इज आकाशदेव पीजी गर्ल्स कॉलेज. फॉर कोलकाता एंड मुंबई, ये देखो ये दो मेन सेंटर्स हैं जो अभी तक अपडेट ही नहीं हुए. So for Kolkata and Mumbai, this exam center location has yet not been confirmed by IFO only. So it is quite possible that you might receive your update related to your location later on if you have filled Kolkata and Mumbai. For New Delhi, देखो गुरु हरगोबिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी विच इज इन आनंद विहार. एंड नोएडा का सेंटर इज दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन विच इज इन नोएडा. तो गुड़गांव वाले स्टूडेंट्स को भी बेसिकली दिल्ली सेंटर ही अलॉट हुआ है. गुड़गांव का कोई अलग से सेंटर नहीं अलॉट हुआ है. गुड़गांव स्टूडेंट्स हैव रिसीव दिल्ली सेंटर ओनली एंड नोएडा वाला सेंटर भी अलग से कर दिया है और दिल्ली वाला जो सेंटर है वो भी नोएडा के अंदर ही कर दिया है. तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, बट this is the center availability. Pune ka, you can see Vishkarma College of Arts, Commerce and Science. And we have some outside Indian students as well. So guys, you can check out your details of the centers in your respective cities. So some of the cities have yet not received their location, but for mostly students, they have received their location allotment. So we were getting basically many messages with respect to that we have yet not received the location. See, अभी आपके पास दो ऑप्शन है. अगर तो आपके पास लोकेशन आ चुकी है तो डेफिनेटली गो हेड विद योर अटेम्प्ट एंड अपीयर फॉर योर एग्जाम इन अप्रैल 2025. अगर आपके पास लोकेशन नहीं आई है बिकॉज ऑफ रीजंस, मतलब आपका सेंटर नहीं आपको अलॉट हुआ है, तो उनके पास दो ऑप्शंस हैं उन स्टूडेंट्स के पास. पहला ऑप्शन इज कि आपके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, मतलब जो ऑनलाइन वाला उनका सिस्टम है वो ओपन रहेगा. तो यू कैन गिव एग्जाम इन ऑनलाइन फॉर्मेट एज वेल, प्रोवाइडेड जो ऑनलाइन वाला प्लेटफॉर्म है उनका अच्छे से वर्क करेगा. वो भी आपको उसकी डिटेल्स, उसका अपडेट देंगे कि हाँ ऑनलाइन सिस्टम वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा. एंड दूसरा ऑप्शन इज बेसिकली आपके पास कि आप रिफंड ले सकते हो 31 मार्च से पहले पहले. सो सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर मैसेजिंग अस कि हमें सेंटर नहीं मिला है तो क्या हम रिफंड ले लें. तो गाइज, हम तो आपको नहीं बोलेंगे कि आप रिफंड के लिए जाओ. देखो, रिफंड इज नॉट एन ऑप्शन. आपने अपनी मेहनत करी है, आपने इतना टाइम डिवोट किया है, आप डेफिनेटली अप्रैल 2025 एग्जाम के लिए अपीयर करो. और अगर आपको वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का एक्सेस दे रहे हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है कि जाके मेरे को एग्जाम देना है या घर पे बैठकर एग्जाम देना है. इट्स वन एंड द सेम थिंग ओनली. appear for your exam if this online thing is compatible with your system and everything works fine. और अगर नहीं हुआ फिर तो हमारे पास वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है. फिर तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि yes we have to take the refund. बट सिर्फ इस चक्कर के लिए आप लोग अपीयर ना करो कि हाँ हमारे पास ऑप्शन है कि हम रिफंड ले सकते हैं तो हम रिफंड का ही अप्लाई कर देते हैं. ये बिल्कुल भी तरीका नहीं है, बिकॉज रिफंड का ऑप्शन सिर्फ पहली बार इंट्रोड्यूस किया आईएफओ ने बिकॉज ऑफ द चेंजेस दैट वर मेड लेटर ऑन. उनको खुद भी नहीं पता था बेसिकली कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है. दे वर रिलाइंग ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओनली, एंड सिंस इट वॉज नॉट सक्सेसफुल, then IFA came with this update that we will be having exam
सेंटर्स। तो अभी जो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे सेंटर अलॉट हुआ है, ये बिल्कुल भी नहीं है। मतलब some of the students were asking this only. So the reason for collecting data from every student was this only, that we actually wanted to analyze कि अगर किसी ने लेट एग्जाम फिल किया है तो क्या उसको भी सेंटर मिला है? बिल्कुल मिला है। अगर किसी ने बिल्कुल एंड डे पे भी एग्जाम अप्लाई किए तो भी उसको सेंटर अलॉट हुआ है। तो इट्स नॉट ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन द लोकेशन दैट यू हैव चोजन, और उस पर्टिकुलर एरिया में क्या अवेलेबिलिटी थी। और कुछ कुछ के लिए, अब जैसे गुड़गांव वाले स्टूडेंट्स के लिए अगर न्यू दिल्ली सेंटर हुआ है, और गुड़गांव और नोएडा, मतलब न्यू दिल्ली वाला सेंटर भी आपका नोएडा के अंदर ही है, तो वो बहुत दूर है। बट ठीक है, कोई और ऑप्शन नहीं है, तो एटलीस्ट यू हैव रिसीव्ड योर सेंटर अपडेट। अब इस चक्कर में आप रिफंड मत अप्लाई करना कि हाँ मेरा सेंटर बहुत दूर है, मुझे सेंटर या लोकेशन नहीं सही लग रही, तो लेट मी जस्ट अप्लाई द रिफंड। दिस शुड नॉट बी देयर। Go for your April 2025 exam, irrespective of the center, whatever you have received. Plus, in case you have not received your center, वो आपको मेल करेंगे कि हाँ आपके सिस्टम पे हम चेक करेंगे कि अगर ओपन मतलब क्लोज बुक एग्जाम ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग फॉर्मेट में अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं हुआ तो रिफंड का ऑप्शन। तो रिफंड के लिए भी, मतलब फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिनका सेंटर अपडेट नहीं होगा या जो भी है, अगर आपके पास जो रिफंड का ऑप्शन है वो ये है दैट इफ फॉर एनी पर्टिकुलर रीजन बेसिकली you decide not to take your examination, you are entitled to a full refund. So there's a refund policy, and you need to complete your exam refund form, and you need to submit it to member services at the rate actuaries.org.uk by 5 UK time on 31st March. मतलब रिफंड के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो 31st मार्च तक ही आपके पास टाइम है, जो कि हम बिल्कुल भी आपको रेकमेंड नहीं कर रहे कि आप रिफंड के लिए अप्लाई करो। बहुत मेहनत लगती है पढ़ाई करने में, बहुत टाइम आप लोगों का गया है एग्जाम की प्रिपरेशन करने में। इट्स बेटर टू अपीयर फॉर इट, एंड इस अभी सोचो आप कि यस आई हैव टू अपीयर फॉर इट एंड आई हैव टू क्लियर इट। माई अंडरस्टैंडिंग इज दैट बेसिकली जो भी अभी मेरे पास टाइम बचा है, आई जस्ट नीड टू वर्क हार्ड एंड वर्क ऑन माई इम्प्रूवमेंट एरियाज। तो एनी डाउट्स विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन टू एनी ऑफ यू? इट्स अ जनरल सेशन, हम लोग मिले ही सिर्फ आप लोगों के डाउट्स डिस्कस करने के लिए। तो यू गाइस जस्ट फील फ्री टू अनम्यूट योर माइक एंड स्पीक। So Soumya says, "Hi ma'am, I'm from Mauritius. All Mauritians have not got a center. IFA sent a mail to say that I have not got a center and there will be remote invigilation if the system work. There is a greater chance that the system might not work. Kindly advise." So yes Soumya, be prepared for this कि देखो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको सेंटर नहीं मिला, ठीक है। और मॉरिशस में काफी स्टूडेंट्स हैं जिनका सेम इशू है जो आपने इशू रेज किया है। यही सेम स्टूडेंट्स का इशू बहुत सारे स्टूडेंट्स का सुबह से इशू आ चुका है कि मॉरिशस के स्टूडेंट्स को सेंटर अलॉट नहीं हुआ है। तो अभी जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि यस आप लोगों के पास मेल आई होगी कि हम रिमोट इन्विजिलेशन से एग्जाम कंडक्ट करेंगे, बट हमें उस चीज के लिए भी प्रिपेयर रहना है कि हाँ दैट रिमोट इन्विजिलेशन माइट नॉट वर्क एट द एंड मोमेंट, और आप लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होएगा कि मतलब टू टेक द रिफंड। देखो अगर रिमोट इन्विजिलेशन, मैं आपको ये बोलूंगी कि आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो for whichever subjects you are appearing. So I just want to understand which all subjects you are planning for April 2025. So Soumya, quickly comment or unmute your mic. Which all subjects you are planning for April 2025? So if you're planning CP1, CP2, CP3, so definitely all three it's tricky to clear at one go. आप preparation continue रखो. Wait for more details from IFOA with respect to remote invigilation, and you can also mail them that I want to take a decision, and so just let me know whether that remote invigilation will work or not. So if it works, then fine. Otherwise, take refund, and instead of continuing only with CP1, CP2, CP3, maybe we can discuss on individual level ki based on your exams that you have cleared and based on the exams that are remaining, which all subjects preparation you can continue more for your September 2025. तो डोंट सेट ओनली विद दिस थिंग कि मेरे को अगर सेंटर नहीं मिला तो मैं सिर्फ CP1, CP2, CP3 कंटिन्यू करूंगी। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो चुकी है एंड यू आर रेडी फॉर द अप्रैल 10, तो फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि अब आपको बेस्ड ऑन योर एग्जाम्स क्लियर्ड एंड बेस्ड ऑन द एग्जाम्स रिमेनिंग कि आपको किस एग्जाम के लिए अपेयर करना चाहिए।
So guys, what about others? Any doubts? There were a lot of students who were asking lot of doubts with respect to April 2025 exams. So guys, feel free to ask all your doubts. I'm here to address all your doubts related to IFOA April 2025 exams. अभी तक मैसेजेस आ रहे थे कि सेंटर की डिटेल्स बताओ, सेंटर की डिटेल्स नहीं आई। आप सब लोगों के पास अब सेंटर की डिटेल्स है। कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा था कि सेंटर कैसे पता चलेगा। आपके पास मेल आई होगी, आपके अकाउंट में भी अपडेट हुआ होगा सेंटर लोकेशन। और लोकेशन एग्जैक्टली जैसे न्यू दिल्ली सेंटर अगर अपडेट हुआ है तो न्यू दिल्ली के सेंटर की क्या डिटेल्स है वो मैंने आपको दिखा दी कि ये यहाँ पे सारे सेंटर्स हैं। तो यू कैन चेक आउट ऑल द डिटेल्स ऑन दिस लिंक एज वेल. Any doubts that you want to address with respect to IFO April 2025? This is just a quick session for your doubts discussion only. तो yes हर्षिता, एग्जाम टाइमिंग्स हैव चेंज्ड। तो जो भी आपके पास मेल आई है यू नीड टू डू एग्जाम एज पर दैट टाइमिंग्स। और ये ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, दिस इज एज पर द यूके टाइम। तो आप अपना जो भी जिस कंट्री से भी, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एज वेल, सो जस्ट चेक आउट द टाइमिंग्स बेस्ड ऑन योर लोकेशन. So just make sure that you are appearing for the exam as per your local time. So Ashim, now exam will be in Guardian, exam will not be in Guardian browser. वो सारी चीजें पहले थी, मतलब that Guardian browser and everything was at the time of this remote invigilation. But अभी remote invigilation नहीं है. अगर आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देने के लिए वो बोल रहे हैं, क्या तरीका होगा, नॉर्मल आपका लैपटॉप रहेगा और वहां पर आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, आपके पास ऑप्शंस डाउनलोडिंग और अपलोडिंग का रहेगा, एंड यू जस्ट नीड टू डाउनलोड द एग्जाम and upload it at the time provided there is in-person invigilation going on. So for remote invigilation, still not no details are out yet. We are expecting that not to be there because Guardian browser ही तो फेल हुआ था. तो लेट्स सी हाउ इट गोस. मतलब बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स होंगे ना कि जिनको उनको रिमोट इन्विजिलेशन बेसिकली करना होगा. तो अभी भी ये डिटेल्स क्लियर नहीं है. अगर ये डिटेल्स क्लियर होती तो आईएफओ इतना कुछ करता ही नहीं. अभी उनको भी नहीं पता कि वो कैसे वर्क अपॉन करेंगे, एग्जैक्टली कैसा रहेगा, और जो सिस्टम है वो ऑनलाइन वाला वो काम करेगा भी या नहीं करेगा. So Pammi is asking one doubt कि will centers provide laptop और desktop? So Pammi, आपको इस चीज के लिए इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है कि लैपटॉप मिलेगा कि डेस्कटॉप मिलेगा. जो भी मिलेगा उस पर आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चल रहा होगा. आप अपने तरीके से प्रिपेयर करके जाओ कि मुझे वर्ड के अंदर एग्जाम करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर गेटिंग डेस्कटॉप और लैपटॉप. So Dipanshu is asking what all things we need to carry with us when we go to the center, like other than calculator and actual tables. So Dipanshu, ये हमने last IFOA talk session में discuss किया था. As per the updates that are there on their website, calculator, actuarial tables, you are just supposed to carry. उसके अलावा rough sheet आपको मिल जाएगी, 2 rough sheets and pen and paper. That's it, nothing else. बाकी और डिटेल्स अभी ये लोग एग्जामिनेशन हैंडबुक, हर हर डाइट के लिए, बेसिकली हर ईयर के लिए एग्जामिनेशन हैंडबुक रिलीज होती है जिसमें सारी डिटेल्स होती है विद रिस्पेक्ट टू हाउ यू नीड टू अपीयर फॉर द एग्जाम एंड व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू कैरी ऑन द सेंटर. बट दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट वी नीड टू कैरी. तो ये तो जैसे हम लोग पहले कैरी करते थे ये वही रहेगा. ठीक है. Next is Ravi Shankar is saying, ma'am, is there any chance they allot the center to whom they have not allotted afterwards, or the RI would be only option? तो अभी कोई चांस नहीं है रवि, कि जिनको सेंटर नहीं अलॉट हुआ उसको सेंटर अलॉट होगा, उसका कोई चांस नहीं है. मतलब बहुत ही मुश्किल है. सिर्फ मुंबई और कोलकाता के सेंटर की डिटेल्स अपडेट होना बाकी है. रेस्ट एवरीथिंग हैज बीन अपडेटेड. So Twinkle says, ma'am, I had put address as Nagpur, but I got Mumbai. More feasible for me since it involves just traveling costs. I had mailed them regarding this, but they can't change. What should I do? They should have asked for second preference at least. So Twinkle, अगर आपने आपका एड्रेस बेसिकली नागपुर था, what I understand from your question is that आपका एड्रेस नागपुर था लेकिन आपको सेंटर मुंबई मिला है. Is that true? Is this your issue?
Yes, ma'am. Okay, and you are not comfortable going to Mumbai. Basically, you wanted Nagpur only, right? But Nagpur ka bhi, Ma'am, yes. and you are not Ma'am, comfortable going to Mumbai, right? yes, ma'am. So, Ma'am, I just, mhm, ma'am, it's like Bangalore is more feasible for me mhm, instead of Mumbai. So, mhm. is there any way in which I can change the location? आई डोंट थिंक सो एज आई टोल्ड कि सेंटर का अलॉट होना ही अपने आप में एक तरीके से आपके पास सब कुछ जो है वो फाइनल आ चुका है। मतलब अब आप सेंटर चेंज रिक्वेस्ट करोगे भी ना तो भी बहुत मुश्किल है वो रिक्वेस्ट को मतलब केटर इन करना। तो आपके पास यही ऑप्शन है कि आप मुंबई अप्लाई मतलब मुंबई का ऑप्शन ले लो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को मुंबई जाना फिजिबल नहीं लग रहा, यू कैन मेल देम कि मतलब it's very far away from my place and it will involve lot of expenses and currently I am in non-earning phase and I cannot bear that level of expense. So is that possible that I can get remote invigilation option? If they agree to it, go for it. Otherwise, you can take refund. मतलब center change करने का तो अब option बचा ही नहीं है। Ma'am, since Mumbai centers aren't allotted yet, am I audible? Mm-hmm. Yes, yes, you are Since Mumbai audible. centers aren't allotted, so is there any chance that I Very can difficult. still get restricted to मतलब Bangalore? very difficult. You can try your best, you can mail them, but seems very difficult because then everyone will request for the center change ना। और अभी ऑलरेडी इतना इशू चल रहा है आईएफओ में, यही अगर कुछ नॉर्मल होता मतलब तो डेफिनेटली दिस रिक्वेस्ट वुड हैव बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। बट अभी जैसे अब जैसे गुड़गांव वाले स्टूडेंट्स बोलेंगे या एक्स वाई जेड कोई और स्टूडेंट बोलेगा कि ये वाला सेंटर जो आपने मुझे फॉर एग्जांपल दिल्ली का सेंटर जो आपने मुझे अलॉट किया है वो ईस्ट दिल्ली का अलॉट कर दिया। आई स्टे इन वेस्ट दिल्ली, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गो टू ईस्ट दिल्ली। तो आप मेरा सेंटर चेंज कर दो, वो नहीं पॉसिबल है। मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट एट दिस स्टेज। मतलब आप मेल कर दो, Um, देर इज नो हार्म इन मेलिंग। डू मेल देम, डू चेक, डू टेल एवरीथिंग क्लियरली टू देम एंड जस्ट वेट फॉर their response. Ma'am, I did mail to them. They said that they can't change it. आई टोल्ड यू ना इट विल नॉट बी पॉसिबल। तो अब आपके पास, अब आप मेल जो करोगे ना वो ये कर सकते हो कि इफ यू कैन नॉट चेंज द सेंटर तो गिव मी एटलीस्ट द ऑप्शन ऑफ रिमोट इन्विजिलेशन बिकॉज आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू बियर दिस मच एक्सपेंस टू सी देन Ma'am, व्हाट। the mail said that you can take a refund, but ma'am, I can't यस like आई afford डू making this अंडरस्टैंड attempt. कि मतलब रिफंड लेना उन लोगों के लिए ऑप्शन है बेसिकली जो लोग प्रिपेयर्ड नहीं है। जो लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है मतलब बिल्कुल भी रिफंड लेना ऑप्शन नहीं रहता। हर बच्चे को ये लग रहा है कि मेरे 3 3 4 4 महीने क्यों वेस्ट जाए। मतलब मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करी कि आप रिफंड लो। बट एक बार मेल कर दो कि इफ पॉसिबल ट्राई फॉर रिमोट इन्विजिलेशन। अदरवाइज फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप मुंबई में जाके एग्जाम दो अगर आपको रिफंड लेने ना। कुछ भी ऑप्शन नहीं है, मतलब कुछ ऑप्शंस ही नहीं है। Okay, ma'am. Thank you. So guys, any other doubts to any of you? It's very bad on IFA part that we are facing all these issues, but nothing can be done at this point of time. So it's good at least for those students who applied for their respective location and they have actually got that particular location only. So see the issue that other students are facing. Some are really prepared and they have not been allotted center. Some are prepared, but again the center has been allotted, which is very far away from their place. In fact, it's in another city. So definitely they are left with no other option. So Twinkle is asking, will we be able to split the screen in their systems? I suppose no, because all these things will not be permitted. सिर्फ जो एज पर द इंस्ट्रक्शंस विच इज देयर ऑन द मेल उसमें सिर्फ भी ये लिखा हुआ है कि वी कैन अलाउ सी मॉनिटर ऑन द लैपटॉप्स बट splitting screen would be allowed or not, that even we are not aware for. And so let's just wait for more details from IFOI side only. सो देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है अपने सिस्टम पे एग्जाम देना वर्सेस सेंटर पे जाके उनके सिस्टम पे एग्जाम देना। आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, बट
इस चक्कर में रिफंड अप्लाई करना इज नॉट अ सोल्यूशन। आपको अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से करके जानी है कि आई नो एवरीथिंग एंड आई जस्ट हैव टू राइट एवरीथिंग, बेसिकली टाइप एवरीथिंग इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। एंड वर्ड डॉक्यूमेंट हर सिस्टम में सेम ही काम करता है, तो ठीक है, टाइपिंग की आदत हो जाती है, अपने सिस्टम से हम लोग कंपैटिबल हो जाते हैं। लेकिन मैं इसका आपको एक और सोल्यूशन भी देती हूँ। आप लोग अपने सिस्टम पे ही तैयारी मत करो। मतलब अगर आपको लग रहा है ना, हमें ये तो पता ही है कि हमें सेंटर मिल चुका है और हमें उनके सिस्टम पे जाकर पेपर देना है, if it is there is an option with you that you have an alternative system at your place, alternative laptop, फ्रेंड का लैपटॉप लेकर उस पे थोड़ा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। आपके ब्रदर सिस्टर के पास, पेरेंट्स के पास कोई एक्स्ट्रा लैपटॉप है, उस पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ताकि थोड़ा सा आपकी कमांड दूसरे लैपटॉप्स पे भी आए और आपको ये पता चल जाए कि हाँ, मुझे अपने सिस्टम पे कितना टाइम लग रहा है वर्सेस मुझे किसी और के सिस्टम पे कितना टाइम लग रहा है। तो जो इश्यूज आएंगे 1-1.5 महीने में, एटलीस्ट यू कैन वर्क अपॉन ऑन दैट। क्योंकि पहली बार एकदम से आप अगर अपने लैपटॉप पे ही सारी तैयारी करके रखोगे और एकदम से आपके पास दूसरा लैपटॉप आ जाएगा, तो हाँ, बहुत ज्यादा पैनिक हो जाओगे। तो जो पैनिक फेस करना है ना, वो अभी फेस कर लो। सो ट्विंकल इज आस्किंग कैन वी यूज आर। देखो, आर और एक्सेल आप CS1A और CM1A के लिए यूज कर सकते हो, ये क्लियरली मेंशन्ड है। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल था अगर ये उनके सिस्टम पे सॉफ्टवेयर बेसिकली डाउनलोड रहेगा। तो एक्सेल तो रहता ही है, तो CM1 मैंने स्टूडेंट्स अगर एक्सेल यूज करना चाहते हैं CM1A के अंदर, वो ये कर सकते हैं, बिकॉज एक्सेल विल बी इनेबल्ड डेफिनेटली। अब आर सॉफ्टवेयर डाउनलोड रहेगा या नहीं रहेगा, वो नहीं पता। अगर डाउनलोड रहेगा, डेफिनेटली यू कैन यूज दैट। हो सकता है डाउनलोडेड रहे, बिकॉज उसी सॉफ्टवेयर पे ही आगे चल के आपको CS1B का भी तो पेपर देना है, मतलब सिस्टम पे ही तो CS1B का पेपर देना है। तो आप होप कर सकते हो कि उनके सिस्टम पे आर सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड रहेगा। बट आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर होना है कि अगर नहीं भी हुआ तो आई हैव टू डू कैलकुलेशंस ऑन माई ओन। तो ये कमिट करना कि हाँ, आर होगा ही होगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट येस, वी आर एक्सपेक्टिंग आर टू बी देयर, बिकॉज सेम सिस्टम पे ही तो CS1B का पेपर होने वाला है। So is it safe to practice CS1A in our? यस यस, यू कैन यूज आर, बट मतलब वही वाली बात है। बस अपने आप को इतना आप ये मत करना कि हाँ, एवरीथिंग यू आर डूइंग इन आर ओनली। और पेपर के टाइम पर आपके पास ऑप्शन है कि आर आप डाउनलोड नहीं कर सकते, आर डाउनलोडेड नहीं है, आप उस टाइम पे डाउनलोड करने तो बैठोगे नहीं उनके सिस्टम पे। आर डाउनलोडेड नहीं है, आपके पास क्या ऑप्शन है, आपने खुद से ही सारा कुछ करना। तो आप इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहो कि हो सकता है आर डाउनलोड रहे, जिसकी चांसेस है 10 to 20%। 70 to 80% इट इज कि हाँ, आर वहां पे नहीं होगा। तो यू शुड नो डूइंग क्वेश्चंस बोथ वेज, एंड you should prepare yourself for each and every worst thing that can happen to you in exam. So should I just practice in Excel instead of R? You can do, you can do that. See, you can use Excel and R for your calculations. It's up to you, whichever way you find convenient, you can do that. Okay. So one other question that I have received is that can we take CB1 ratios formula with us? You cannot take any notes, Dipanshu. You are not allowed to take any notes. तो आपको पास एक ही ऑप्शन है, आप याद करो चीजों को। अभी भी 1 महीना है हमारे पास अच्छे से प्रिपेयर करने का। 1 महीने के अंदर अपनी चीजों को याद करो, जो आपको वीकनेस पता है कि हाँ, मुझसे मेरे को फॉर्मूले नहीं याद हो रहे, वो 1 महीने में तो लगा के याद करने हैं आपने। अगर आप ये सोचोगे कि वो आपको फॉर्मूले अलाउ करेंगे, वो नहीं अलाउ करेंगे, फिर क्लोज बुक एग्जाम का मतलब ही क्या हुआ। आपको कुछ भी कैरी नहीं करना, आपको सिर्फ एक्चुअल टेबल्स है, कैलकुलेटर है, 2 रफ शीट्स मिलेंगी, पेन होगा, दैट्स इट। So, guys, any other questions? Otherwise, we are good to wind up for the day. So, I hope all your doubts related to location and the recent information that has been out by IFOI has been cleared. We will meet again if we get more information from IFOI. So Ravi is asking, can we use hard copy of actuarial tables for mock test of IFOA? मॉक्स के लिए आप जो मर्जी यूज करो रवि, कुछ भी प्रोहिबिटेड नहीं है। मॉक्स का मतलब ही यही है कि मतलब इट्स जस्ट अ ड्रिल दैट इज गोइंग ऑन, सो यू कैन यूज दैट।
Mom, will they check the formula tables, like the book that we'll get with us? देखो, जब हम लोग सेंटर पे पहले भी एग्जाम्स होते थे तो दे जस्ट चेक कि हाँ बुक पे कुछ स्क्रिबल वगैरह, मतलब अननेसेसरी नोट्स नहीं लिखे होने चाहिए. दे डू चेक फॉर दिस. सो बस जस्ट मेक श्योर दैट द बुक और द टेबल दैट यू आर कैरिंग इज क्लीन एंड अननेसेसरी, मतलब उसमें बहुत कुछ लिखा नहीं होना चाहिए. Because we have seen when we used to give exams at the center that some of the students have written notes in their tables and they were not allowed basically, I mean, to use that particular table booklet. So table booklet का इतना इशू नहीं है because इतने सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो अगर टेबल चाहिए भी होंगे आपको तो आप रेफर कर सकते हो. मतलब अपनी बुक तो आप कैरी कैरी करो ही, बट वो लोग भी अपने सेंटर्स पे, जैसे पहले तो वो लोग अपने सेंटर्स पे टेबल बुकलेट की अवेलेबिलिटी रखते थे. अभी इस बार क्लियर नहीं है कि टेबल बुकलेट अवेलेबल होगा. अभी तो उन्होंने ये लिख दिया कि आपको ही कैरी करनी है. हो सकता है सेंटर पे ही मिल जाए, तो इतना कोई इशू नहीं है. मतलब पहले तो हम लोग इंडिया के सेंटर्स पे टेबल बुकलेट लेके जाते थे, आईएफओई के सेंटर्स पे टेबल बुकलेट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड होती थी. ठीक है. सो गाइस, आई होप ऑल योर डाउट्स are clear now. So hoping for more updates, for more clear announcements from IFA side, so that we can also be clear with respect to your attempt. Still, do not panic. Do not worry about all these things. The only thing that you should worry is ki how to prepare my exam for my April 2025 attempt. All other things are extra for you. बस हमने अच्छे से प्रिपेयर करना है, हमने वर्ड पे प्रिपेयर करना है. और हमें जो इशू आ रहा है कि हम टाइपिंग के साथ अपने लैपटॉप्स के साथ ज्यादा कंपैटिबल है, हम दूसरे का लैपटॉप रेफर करना स्टार्ट कर सकते हैं. आप फ्रेंड का ले लो, ब्रदर सिस्टर का ले लो, पेरेंट्स का ले लो बेसिकली. और अगर दो तीन की अवेलेबिलिटी है ना, तो दो चार दिन एक लैपटॉप पे काम कर लिया, फिर 2 दिन किसी और लैपटॉप पे काम कर लिया, ताकि आप हर एक स्टाइल के लैपटॉप के साथ कंफर्टेबल हो. ये प्रैक्टिस जरूर कर लो, सो दैट बेसिकली यू आर रेडी. सो ट्विंकल, नो वी कैन नॉट टेक कीबोर्ड्स विद अस. जो वो प्रोवाइड करेंगे हमें सिर्फ उन्हीं का सिस्टम यूज करना है. यू आर नॉट अलाउड टू टेक एनी एक्सटर्नल अटैचमेंट विद यू. तो कोई कीबोर्ड या मॉनिटर वगैरह हम लोग नहीं साथ में लेके जा सकते. ठीक है. चलो, सो विद दिस लेट्स जस्ट रैप अप फॉर द डे. So happy Holi everyone. All the best. Stay motivated.